Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Rural Livelihood. This is your chapter number 8 in civics, and under this chapter we are discussing about the various ways of earning money in rural areas, and we are discussing about a particular village that is Kalpattu, which is in Tamil Nadu, and we are seeing ki what are the various economic activities are done by the people in that village. And in this regard we have seen that farming is the one of the most important activity in the village Kalpattu, and the main crop is paddy. And we have started our discussion regarding different types of farmers. Like first of all, we have discussed about the farmers who are landless. They are farmers but they are not owing any piece of land, or it may also be that they are owing such a small piece of land that it will be of no use if they do farming on that piece of land. So what they do, they do farming in the land of someone else, है ना, किसी और के लैंड में वो फार्मिंग करते हैं और उनको हम कहते हैं लैंडलेस लेबरर्स. Tulsi is just one of the landless laborers about whom we have discussed. She works in the field of Ramalingam. Ramalingam is a big farmer. He has 20 acres of land, है ना. और Tulsi who works in the farm of Ramalingam, we have discussed what problems she faces. We have seen that in her work place, she faces so many problems: long working hours, then physically painful work she has to do for the whole day. Then her wages are also very low, and in the house also she has to face so many problems, like basic facilities are not there in her house. For the purpose of fetching water, she has to travel 1 kilometer every day to and fro. So this is really very cumbersome for her. She also goes to forest in order to collect firewood. So these are the problems which are faced by Tulsi. And we have also seen how if any sudden financial burden occurs on such family, then they are in deep trouble. Like what happened when her daughter became ill last year. They have to admit her in the hospital for her treatment. But what happened? They needed money, and this money was provided to them by Ramalingam. But after all these things became normal, she came back from that hospital. तो उसके बाद उसको रीपेमेंट तो करना था रामालिंगम को, एंड इन ऑर्डर टू रीपे द मनी शी हैज़ टू सेल हर काउज, है ना. उसको अपने काउ तक सेल करने पड़ गए ताकि वो रामालिंगम से जो उसने पैसे उन्होंने लोन लिया था उसको वो पूरा कर सके. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री. जो लैंडलेस लेबरर्स हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. एंड वी हैव ऑल्सो सीन दैट इन आवर कंट्री देर आर 2/5 ऑफ द फैमिलीज हु बिलोंग टू दिस ग्रुप, है ना. 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर. Either they are not having any land, or they are having very small plot of land. So these are the problems. And now we are discussing about a small farmer, Sekhar. And what we have seen that Sekhar is owing a small piece of land. His piece of land is of 2 acres, है ना. 2 एकड़ की लैंड उसके पास है. And in order to do the farming work, he does not need any labor. उसको लेबर हायर नहीं करना पड़ता है कि वो 2 एकड़ की जो ज़मीन है उस पर इन ऑर्डर टू डू द फार्मिंग वर्क कि वो हायर करे लेबर को, उनसे काम कराए जैसे रामालिंगम हायर करता है ना. बिकॉज रामालिंगम के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, इसलिए उसको लेबर हायर करना पड़ता है. बट शेखर के पास उतना बड़ा लैंड नहीं है तो उसको नहीं हायर करना पड़ता है. कैसे काम करते हैं वो? अकेला नहीं करता. ही डज नॉट डू अलोन. How does he do? He takes the help of his family members. All the family members are involved in the farming activity, है ना. पूरी फैमिली मेंबर मिलकर के काम करती है. Still what happens at the time of
हार्वेस्टिंग देयर इज नीड ऑफ एडिशनल लेबरर, है ना। जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर एडिशनल लेबर की नीड पड़ती है, और जब भी एडिशनल लेबर की नीड पड़ती है तो क्या होता है कि उसको कौन हेल्प करता है, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो हेल्प करते हैं। क्यों हेल्प करते हैं? बिकॉज शेखर ऑल्सो हेल्प्स देम whenever they are in need of labor. Shekhar helps them. So when Shekhar is in need of labor, he gets help from his friends also. तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मिलके फार्मिंग का काम कर लेते हैं। बट हियर वन थिंग, वन प्रॉब्लम इज देयर विद द शेखर, दैट इन ऑर्डर टू स्टार्ट द फार्मिंग वर्क, काम शुरू करने के लिए ही नीड्स सीड्स, देन फर्टिलाइजर्स, देन पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ों की उसको नीड होती है ना। अब वो कैसे इन नीड्स को पूरा करेगा? उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, ही इज़ नॉट हैविंग दैट मच मनी कि ही कैन स्पेंड ऑन परचेजिंग दीज सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? जब हम इस तरह की प्रॉब्लम में फंसते हैं कि हमें किसी चीज़ की बहुत अर्जेंट नीड है, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है ना, और हमारे पास उसके लिए पैसे नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं? वी टेक लोन, है ना, हम लोन लेते हैं। और ये जो लोन होता है उससे हम अपना काम करते हैं, और फिर उस काम से जो हमें प्रॉफिट होता है उससे हम लोन को रिपेमेंट कर देते हैं, है ना। दिस इज द वे वी डू द वर्क। तो शेखर इज ऑल्सो डूइंग द सेम, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग द मनी बट ही विल हैव टू डू द फार्मिंग वर्क, तो उसके लिए वो लोन लेता है। अब ये लोन वो किससे लेता है? ही टेक्स लोन फ्रॉम ट्रेडर्स, ठीक है, वो ट्रेडर से लोन लेता है, क्योंकि ट्रेडर जो है वो उनको इजीली लोन दे देते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी पेपर वर्क के, कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करना, कुछ भी नहीं, बस वो इजीली उनको लोन दे देते हैं। बट दे पुट वन कंडीशन ओनली। व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन इज कि व्हेनेवर देयर क्रॉप इज रेडी, व्हेनेवर देयर प्रोड्यूस इज रेडी, दे हैव टू सेल द प्रोड्यूस टू द ट्रेडर ओनली। ओके, क्या होता है ये? क्या शर्त क्या है? जो ट्रेडर जब लोन देते हैं शेखर जैसे फार्मर्स को, तो वो क्या अपने सामने क्या ये रखते हैं, कंडीशन क्या रखते हैं कि ठीक है हम आपको लोन दे देंगे, आई एम रेडी टू गिव यू लोन, नो प्रॉब्लम, बट आपको बस एक काम करना है। क्या करना है कि जब आप हमसे लोन लेकर के क्या करेंगे? सीड्स खरीदेंगे, फर्टिलाइजर्स खरीदेंगे, पेस्टिसाइड्स खरीदेंगे, और एंड यू विल स्टार्ट द कल्टीवेशन, है ना। और फिर क्या होगा? फिर खेत में उपज होगी, है ना, प्रोड्यूस होगा। सपोज अगर पैडी लगाया है तो पैडी की क्रॉप हो जाएगी, फिर आप उसको हार्वेस्ट करोगे, है ना, उसकी कटाई होगी, हार्वेस्टिंग जिसको हम कहते हैं। फिर हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या करेंगे कि उसमें जो पैडी होते हैं उसमें से राइस निकलवा करके राइस मिल में जाके वो राइस निकलेगा उसमें से, और फिर उस राइस को हम लोग जो फार्मर्स होते हैं वो सेल करते हैं, है ना। पैडी भी सेल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि वो राइस ही सेल करेंगे, दे कैन डायरेक्टली सेल द पैडी ऑल्सो। तो जब आप सेल करोगे इधर पैडी और राइस, तो आपको मुझे ही सेल करना है। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन पुट बाय ट्रेडर, कि जब आपका प्रोड्यूस रेडी हो जाएगा और आप उसको सेल करना होगा, तो आप मार्केट में जाके, ओपन मार्केट में नहीं जाना है आपको, यू डोंट नीड टू गो टू द ओपन मार्केट, यू जस्ट कम टू मी, आई विल परचेज योर पैडी, ठीक है, मैं आपका पैडी खरीद लूंगा। और फिर इस तरह से यही शर्त रखी जाती है। अब इसमें हमें ये समझना है कि ऐसी शर्त क्यों रख रहा है ट्रेडर जो है, वो इस तरह की बात क्यों कह रहा है कि आपको मुझी को सेल करना है। इसलिए कह रहा है कि जब जो फार्मर है, शेखर जैसे जो फार्मर है जिन्होंने लोन लिया हुआ है, तो वो तो जानते हैं कि हमें लोन तो ये रिपेमेंट करना ही है, और लोन पे इंटरेस्ट भी लगता है ना। इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे कि जो भी हम अमाउंट किसी से लेते हैं एज ए लोन, तो हम वही सेम अमाउंट नहीं वापस करते हैं, उस पर कुछ ना कुछ हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि हमने किसी के पैसे को बहुत दिनों तक यूज किया, तो उसके बदले में हम उस पैसे में कुछ और पैसा जोड़ के वापस करते हैं। तो ये जो पैसा और जोड़ते हैं उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं, है ना। तो ये क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो ज़्यादा, अगर उन्होंने 100 रुपये दिए हैं तो वापस हम उनको 100 नहीं देंगे, वापस हो सकता है वो हमसे 150 मांगे। तो इस तरह से वो ज़्यादा पैसा हमसे मांगते हैं, क्योंकि वो रेट ज़्यादा लगाते हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा हमसे मांगते हैं,
ठीक है। अब क्या हो रहा है, दूसरी चीज वो क्या कह रहे हैं कि आपको जो सेल करना है अपने प्रोड्यूस को, वो हमें ही सेल करना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब वो उसको सेल करने जाएंगे तो क्या करेगा जो ट्रेडर है, वो उनसे कम पैसे में उसको खरीदेगा। ठीक है, कम से कम पैसे में खरीदेगा, उस पर प्रेशर डालेगा कि वो कम ही उस प्रोड्यूस का पैसा ले, ज्यादा नहीं ले। ठीक है, तो इसके लिए वो उसको प्रेशराइज करता है, क्योंकि वो लोन लिया हुआ है तो वो ही इज ऑलवेज अंडर प्रेशर। अगर हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो एक हमारे मन में वो एक डर आ जाता है ना, कि हमने तो पैसे उधार ले रखा है, तो इसी को वो यूज करते हैं, है ना, और उनको ये कहते हैं कि आपको हम कम ही पैसा देंगे। तो इस तरह का जो चीज होता है, इसमें क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं दे आर इन लॉस, उनको अपने प्रोड्यूस का सही जो मिलना चाहिए रेट वो नहीं मिलता है। अगर उसी को वो ओपन मार्केट में जाकर बेचते तो हो सकता है उनको ज्यादा पैसे मिलते, लेकिन ट्रेडर को वो बेचने के लिए दे आर मतलब उनको कंपल्सरी हो जाता है कि वो ट्रेडर को ही बेचे, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि ट्रेडर को बेचने से उनको कम प्राइस पे ट्रेडर को देना पड़ता है, और वो जो कम प्राइस पे वो देते हैं वो उनका एक बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, तो इस तरह से फिर भी वो इससे बच नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उससे पैसे उधार लिए हैं, है ना। तो ये ट्रेडर्स जो होते हैं इस तरह से काम करते हैं, और इसमें फार्मर जो है वो लॉस पे है, क्योंकि उसको कम पैसे मिल रहे हैं अपने प्रोड्यूस के। ट्रेडर जो है वो क्या है, वो प्रॉफिट में है, क्योंकि उसको ज्यादा पैसे वो ले रहा है, और फिर कम पैसे ले रहा है, कम पैसे में खरीद करके फिर जाके जब वो उसको मार्केट में बेचेगा तो वो ज्यादा पैसे में बेच देगा। तो ये जो गैप होता है ना, वही ट्रेडर को प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसने किसान से कम पैसे में खरीदा। सपोज करो कि पैडी जो है शेखर ने शेखर जो है पैडी 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसने पैडी को सेल किया ट्रेडर को। ठीक है, ट्रेडर ने शेखर से पैडी कैसे खरीदा, 10 रुपए में 1 केजी। ओके, अब ट्रेडर जो है इस पैडी को, जो कि उसने 10 रुपए में खरीदा है शेखर से, उसको जब वो ओपन मार्केट में बेचने जाएगा तो वो कैसे बेचेगा, वो बेचेगा 15 रुपए पर केजी। ठीक है, तो खरीदा तो उसने 10 रुपीज में शेखर से, लेकिन ट्रेडर जो है वो बेच कितने में रहा है, 15 रुपीज में। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, 10 रुपए में खरीदा, 15 रुपए में बेच दिया, तो 5 रुपीज जो है, 5 रुपीज का हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये है ट्रेडर का प्रॉफिट, और यहाँ पर शेखर का लॉस है, क्योंकि अगर शेखर डायरेक्ट जाकर के मार्केट में बेचता तो वो भी शायद 15 रुपए में बेचता, है ना। तो उसको हर किलो की एक पर किलो जो पर केजी जो वो राइस बेच रहा है, पैडी जो बेच रहा है ट्रेडर को, उस पर उसको 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। आई बात समझ में? इस तरह से काम होता है। इस तरह से जो हमारे फार्मर्स हैं वो परेशान होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स झेलते हैं। और इसके बाद क्या होता है, एक और प्रॉब्लम आती है शेखर जैसे जो किसान को, जो जैसे शेखर जो है वो उसने कितना प्रोड्यूस किया पैडी, 60 बैग्स। ठीक है, अपने फील्ड से जितना भी उसके 2 एकड़ लैंड थे उससे उसने 60 बैग्स ऑफ पैडी उसने प्रोड्यूस किया। अब क्या किया कि वो सारे के सारे तो वो नहीं बेचेगा, ही विल कीप सम ऑफ द पैडी विथ हिम, है ना, ताकि वो उसकी फैमिली की जो फूड से रिलेटेड नीड है वो पूरा हो जाए। फिर उसको अगर सारे के सारे बेच देगा तो फिर क्या होगा, फिर उसको खरीदना पड़ेगा ना अपने फैमिली के फूड से रिलेटेड जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए, फिर से उसको खरीदना पड़ेगा, तो वो तो लॉस और बेवकूफ़ी हो जाएगी पूरा का पूरा बेचना। तो वो पूरा नहीं बेचता है, वो क्या करता है कि उसमें से कुछ ही वो अपना बेच करके लोन सेटल कर देता है, कि जो भी लोन उसने लिया है वो उसका लोन खत्म हो जाए। ठीक है, तो वो इतने ही पैडी बेचता है ट्रेडर को, जिससे कि उसके लोन का एडजस्टमेंट हो जाए, फिर उसको पैसा नहीं देना पड़े, पैडी से ही मैटर जो है वो सॉल्व हो जाए। हालांकि इसमें हमने देखा कि किस तरह का लॉस जो है वो शेखर जैसे फार्मर को
इनकर करना पड़ता है ना। अब वो थोड़ा कुछ तो बेच दिया, दे दिया शेखर ने ट्रेडर को, ताकि उसका जो लोन लिया था वो खत्म हो गया, और बाकी जो है वो उसने अपने कंजम्पशन के लिए, मतलब घर में खाने के लिए उसने उसको बचा के रख लिया। ठीक है, अब जो वो बचा के रख रहा है वो उसके सिर्फ और सिर्फ 8 मंथ्स तक ही चलेंगे। 8 मंथ्स तक ही वो उसको खा पाएंगे, यूज कर पाएंगे। अब हमारे साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो 8 मंथ्स का तो उनका खर्चा खाना चल जाएगा, है ना। खाना वो पैडी से जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है उससे उनका काम चल जाएगा। लेकिन बाकी के 4 मंथ्स में क्या होगा? हाउ विल दे सर्वाइव इन दीज 4 मंथ्स? क्योंकि उनके पास खाने के लिए न तो खाना है, न तो पैडी है, एंड दे आर नॉट हैविंग द मनी ऑल्सो। तो अब ये जो रिमेनिंग 4 मंथ्स है जिसके लिए उनके पास नहीं रह गया पैडी, क्या करेंगे वो? उनको क्या करना होगा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखना होगा, ताकि वो अपने कुछ पैसे अर्न कर सके, ताकि अपनी जो फैमिली की जो बेसिक नीड्स हैं उसको वो एटलीस्ट पूरा कर सके। ठीक है, तो शेखर जो है वो क्या करता है कि बाकी के जो समय है उसमें, जैसे ये जो 4 मंथ्स है जिसमें कि जिसके लिए उसके पास पैडी नहीं है, उस पीरियड में वो क्या करता है कि रामालिंगम के राइस मिल है, उस राइस मिल में वो काम करता है। जैसे अभी बताया ना, जो मेन क्रॉप कलपट्टू का है दैट इज पैडी। ठीक है, तो पैडी में से राइस निकालना, ये राइस मिल में होता है ये काम। और ये राइस मिल जो है वो रामालिंगम के पास है, तो इसी राइस मिल में वो क्या करता है इन 4 मंथ्स में जाकर के वो वहां पर काम करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जैसे जो फार्मर्स हैं, पूरे विलेज में फार्मर्स हैं, नेबरिंग विलेज में भी फार्मिंग हो रही है, वहां भी पैडी हो रहा है, तो नेबरिंग विलेज और अपने विलेज में जो फार्मर्स है उनसे जाकर के वो क्या करता है, पैडी कलेक्ट करता है। सभी से पैडी के बैग्स को कलेक्ट करके एक व्हीकल लाइक ट्रैक्टर होते हैं गांव में, इस तरह के जो व्हीकल्स होते हैं, या फिर जो सामान ढोने वाली व्हीकल है, उनसे वो जाकर के लोगों से पैडी को कलेक्ट करता है और उसको कहाँ लाता है? उसको लाता है रामालिंगम की राइस मिल में। ठीक है, तो इस तरह से ये काम वो करता है ताकि उसका कुछ अर्निंग हो सके। इस काम के बदले में रामालिंगम उसको पैसे देता है ना। इसके अलावे भी कुछ चीजें हैं, जैसे उसके पास एक काऊ भी है। ठीक है, और कैसी काऊ है? काऊ जो है वो हाइब्रिड काऊ है। हाइब्रिड काऊ क्या हुआ? जो काऊ में दो डिफरेंट रेस की जो काऊ होती है उसको मिलाकर के वो काऊ बनती है। ठीक है, तो हाइब्रिड काऊ जो है वो उसके पास है, और हाइब्रिड काऊ जो होती है वो बहुत मतलब अच्छा, उसकी मिल्क वो ज्यादा देती है, अच्छी देती है ना। तो हाइब्रिड काऊ की भी उसके पास है, और उस काऊ से वो मिल्क जो निकलती है उस मिल्क को वो यूज करता है। कहाँ ले जाता है? कोऑपरेटिव में। मिल्क के कोऑपरेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो लोकल मिल्क कोऑपरेटिव्स में ले जाकर के वो उसको सेल करता है, और इस तरह से कुछ न कुछ वो पैसे पा लेता है, जिससे कि उसके हर दिन का जो भी नीड्स हैं फैमिली के उसको वो पूरा कर पाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर शेखर जैसे जो फार्मर्स हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें महसूस हुई, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं वो ये है कि उनको अपने प्रोड्यूस को वो सही ढंग से ओपन मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनको लॉस हो रहा है। पर केजी अगर उसको 5 रुपीज का लॉस हो रहा है, हो सकता है अगर वो ओपन मार्केट में जाकर बेचता तो उसको ये लॉस बहुत कम हो जाता, मतलब लॉस कम नहीं हो जाता। अगर वो ओपन मार्केट में बेचता तो उसे 1 केजी का 10 की जगह 15 रुपए मिलते, पर केजी उसको 5 रुपीज का प्रॉफिट होता। बट ही इज कंपेल्ड टू सेल हिज प्रोड्यूस टू द ट्रेडर ओनली, क्योंकि ट्रेडर्स जो होते हैं वो बहुत प्रेशर डालते हैं किसानों पर, अपने एजेंट्स को भेजते हैं ट्रेडर्स के पास। जैसे कि एजेंट्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जिनको देख के आपको लगे कि हाँ हमें इसी को देना है, आपके मन में एक डर पैदा करने के लिए वो एजेंट्स को भेजते हैं।
कि वो जो भी प्रोड्यूस होगा तुम्हारा उसको हम ही को सेल करना है। तो ये जो चीज़ है ना, ये शेखर जैसे फार्मर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो खुद से सीड्स और फर्टिलाइजर्स ले सके, है ना। और उसके लिए उनको ट्रेडर से पैसे लेने पड़ते हैं, लोन लेना पड़ता है, और वो भी लोन वो ट्रेडर से लेते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो ट्रेडर होते हैं वो उनके साथ सही तरीके से काम नहीं होता है, वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं। और ये जो गरीब शेखर है उसके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे में कई बार बहुत ही खराब सिचुएशन हो जाती है, जिसको हम कहेंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। सपोज हमने अभी बात किया कि हाँ ठीक है, शेखर ने ले लिया, वो लोन ले लिया ट्रेडर से, अब वो जो भी प्रोड्यूस होगा उसको वो सेल करेगा और वो ट्रेडर को वापस कर देगा पैसा। Now there can be such situation in which we see that because of some reason the crops may fail, है ना। हमने शेखर ने लगा दिया, पैडी का क्रॉप लगाया, लेकिन अब क्या है कि जब उसको वो क्रॉप आने की बात हुई उसके पहले ही सपोज करो कि बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। जैसे पैडी जो होता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। पैडी तभी अच्छे से होता है जब वाटर उसको सफिशिएंट मिलेगा। अब ये वाटर जो है मोस्टली हमारे यहाँ क्या होता है, हम जो फार्मर्स होते हैं दे आर पुअर फार्मर्स, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन द मानसून ओनली। तो अब वो मानसून पे डिपेंडेंट है। मान लो कि बारिश जो होती है वो तो फिक्स नहीं है ना कि इतनी बारिश होगी ही, कभी अच्छी बारिश हो गई किसी ईयर में नहीं अच्छी बारिश हुई। तो अगर किसी ईयर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, तो ऐसे अगर कंडीशन हो जाए कि बिल्कुल भी बारिश ना हो या बहुत कम बारिश हो, तो फिर क्या होगा कि उनकी क्रॉप खराब हो जाएगी, प्रोड्यूस बहुत कम हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि पेस्ट का भी अटैक हो जाता है। जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट क्या हुआ, PEST, पेस्ट इज कीड़े। कभी कभी क्या होता है कि कीड़े भी लग जाते हैं क्रॉप में, और जब अगर ये पेस्ट लग गया तो क्या होगा कि पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो बर्बाद हो जाती है। और दैट इज वाई फार्मर्स यूज पेस्टिसाइड्स, है ना। लेकिन कई बार पेस्टिसाइड्स डालने के बाद भी इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाती है। तो हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, देयर आर मेनी नंबर ऑफ रीजन जिसके कारण क्रॉप जो है वो बर्बाद हो सकती है, क्रॉप फेल हो सकती है। तो अब उस सिचुएशन को हम सोचेंगे, शेखर ने उधार ले लिया, लोन ले लिया, है ना। अब क्या हो रहा है, शेखर को लोन वापस करना है। कैसे शेखर लोन वापस कर रहा है ट्रेडर को कि वो अपने प्रोड्यूस को उसको सेल कर देगा। लेकिन अगर उसका क्रॉप फेल कर जाता है एंड ही इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द क्रॉप, तब क्या होगा, तब वो ट्रेडर को कैसे पैसा वापस करेगा। ही विल नॉट बी एबल टू पे बैक द ट्रेडर बिकॉज उसके पास पैसे तो है ही नहीं, और जो प्रोड्यूस आ रहा था वो भी बर्बाद हो गई। तो एक तरफ तो ये प्रॉब्लम आई कि वो ट्रेडर को पैसे नहीं दे सकता है। दूसरी प्रॉब्लम इसी से जुड़ी हुई है कि जो उसने क्या किया था, जितना भी उसने प्रोड्यूस किया उसका एक पोर्शन उसने ट्रेडर को बेचा, बाकी उसने क्या किया, अपने घर के यूज के लिए रख लिया था कि हम लोग घर में इसको खाने में यूज करेंगे। अब वो दोनों तरफ से उसकी प्रॉब्लम आ रही है। एक प्रॉब्लम क्या है कि वो ट्रेडर को पैसे वापस नहीं कर पा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि उसके घर में अब लोग खाएंगे क्या, क्योंकि पैडी का क्रॉप तो हुआ ही नहीं, अब उनको खरीदना पड़ेगा, है ना। दे विल हैव टू परचेज फ्रॉम द मार्केट। तो कैसे होगा काम, पैसे तो है नहीं। अगेन ही विल हैव टू टेक लोन फ्रॉम द ट्रेडर, ताकि उसके जो फैमिली की जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, खाने की नीड, वो तो पूरी होनी बहुत जरूरी है। विदाउट दैट वी कैन नॉट सर्वाइव। तो अब फिर से उसको ट्रेडर से पैसे लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से वो क्या होता है कि जो हमारे फार्मर होते हैं वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेब्ट ट्रैप मतलब क्या हुआ, एक ऐसा ट्रैप क्या होता है, जाल, है ना। ट्रैप हम किसको कहते हैं, ट्रैप इज
एक तरह का जाल, जिसमें हम अगर जाल के अंदर जैसे क्या होता है, इन ऑर्डर टू कैच द फिश हम लोग यूज करते हैं ना नेट को, तो वही नेट या ट्रैप बोथ आर सेम थिंग। तो हम ट्रैप हो जा रहे हैं। शेखर क्यों ट्रैप हो जा रहा है? पैसे लिया खेती के लिए, उसने प्रोड्यूस किया, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन क्रॉप फेल हो गया। अब क्या करेगा वो? उसको ट्रेडर को वापस पैसे नहीं दे सकता है। Moreover, he has to take another loan in order to fulfill the basic needs of his family. तो अब वो ऐसे सिचुएशन में आ गया कि उसका ट्रेडर से जो लोन लिया वो अमाउंट बहुत बड़ा हो गया। अब नेक्स्ट ईयर फिर अगला सीजन जब आएगा तो फिर से ही विल स्टार्ट दिस फार्मिंग वर्क। अब फार्मिंग जब वो स्टार्ट करने के लिए फिर से ही विल नीड मनी इन ऑर्डर टू परचेज सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड ऑल, है ना। तो ये क्या है, अब फिर से उसको लोन लेना पड़ेगा। ही इज टेकिंग लोन फॉर द थर्ड टाइम। पहली बार खेती करने के लिए, दूसरी बार अपनी फैमिली के फूड रिलेटेड नीड्स को पूरा करने के लिए, तीसरी बार फिर से कल्टीवेशन के लिए उसने लोन लिया। तो अब मान लो जब नेक्स्ट सीजन में उसने स्टार्ट किया फार्मिंग, तो वो हो गई उसकी फार्मिंग, है ना। उसने प्रोड्यूस कर लिया, अच्छा इस बार क्रॉप अच्छा हुआ। क्रॉप अच्छा होने के बाद भी इवन दो he will not be able to clear all his loan, है ना। वो पूरा का पूरा लोन वो नहीं दे सकता है। You can just imagine ना, तो it is not possible to give him to give back all the money which he has taken from the trader। तो इसी को हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप। एक डेब्ट DEBT डेब्ट ट्रैप इसको हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप। डेब्ट क्या हुआ? जो हम लोन लेते हैं उसी को डेब्ट कहते हैं। तो ये डेब्ट का ट्रैप तैयार हो जाता है। इस ट्रैप के अंदर शेखर फंसा हुआ है एंड ही हैज नो वे टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैप। इस कारण क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में आ जाते हैं एंड डिस्ट्रेस में आने के बाद कई बारी यू मस्ट हैव हर्ड, हमारे जो फार्मर्स हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों सुसाइड करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस सुसाइड? क्योंकि वो जानते हैं कि वो जिस तरह से वो डेब्ट में फंस चुके हैं, अब वो डेब्ट के ट्रैप से वो बाहर नहीं आ सकेंगे पूरी लाइफ। या फिर क्या करना होगा उनको? अपनी जमीन सेल करनी होगी, जो भी उनके पास लैंड है उसको सेल करना होगा। अगर वो लैंड सेल करके मान लो डेब्ट पूरा भी कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा? हाउ विल दे सर्वाइव? हाउ विल ही एंड हिज फैमिली विल सर्वाइव? तो ये जो सिचुएशन है, इसके कारण कई बार ही ऐसा होता है। अगर थोड़ा भी ध्यान से आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे तो यू मस्ट हैव हर्ड कि जो फार्मर्स हैं वो सुसाइड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे कंट्री की है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट इज द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसके लिए सबसे पहला जो रास्ता हमारे सामने है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम ट्रेडर्स, द फार्मर्स शुड टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स। बैंक्स होते हैं, रूरल एरियाज में भी बैंक्स होते हैं। तो जो बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो बैंक विल नॉट कंपेल यू टू सेल योर प्रोड्यूस टू द बैंक ओनली, है ना। ऐसा कोई भी बैंक कंडीशन लगा ही नहीं सकती है। बैंक जो है वो आपको लोन देगी और उसे पैसे चाहिए, उसे आपका पैडी नहीं चाहिए, है ना। तो इन दैट सिचुएशन यू आर फ्री टू सेल योर पैडी इन द ओपन मार्केट। आप ओपन मार्केट में जाके सेल करोगे, आपको कोई कम प्राइस नहीं मिलेगा, आपकी पैडी की सही प्राइस मिलेगी और फिर आप उसमें से जितना भी बैंक को वापस करना है वो करोगे। तो ये जो 5 रुपीज़ का पर केजी हमने देखा था ना कि हमने अज्यूम किया है, इट्स नॉट रियल। ये नहीं है कि हमेशा इसी तरह का होता है, कितने भी रुपीज़ का लॉस हो सकता है, 2 रुपये का, 4 रुपये का, 10 रुपये का। तो हमने जो देखा कि वहाँ पर शेखर को 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा था। तो ये जो लॉस है ये बंद हो जाएगा अगर बैंक
से हम लोन लेते हैं तो। और बैंक जो होती है ना, वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। वो जैसे खास करके जो फार्मर्स के लिए जो लोन्स होते हैं उसमें बहुत कम इंटरेस्ट, अगर हमने कहा था ना, जैसे अगर हमने ट्रेडर से पैसे उधार लिए हैं, 100 रुपीज़ हमने लोन लिया ट्रेडर से, तो वी विल हैव टू पे बैक समटाइम्स 150 रुपीज़। और ये आर्बिट्रेरी होता है, वो ट्रेडर खुद डिसाइड करेगा कि उसे कितना वापस लेना है, उसको कोई रूल्स नहीं फॉलो करनी है गवर्नमेंट की, है ना। लेकिन जब हम बैंक के थ्रू लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक क्या करता है, बैंक गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट लेता है। और गवर्नमेंट का क्या रूल है कि कम से कम इंटरेस्ट लिया जाए। तो इससे क्या होगा कि आपको जो वापस पैसे करने हैं वो भी अमाउंट कम हो गया, ये फायदा मिला। अब दूसरा रास्ता क्या है, एक तो बैंक्स होने चाहिए, बैंक से लेने चाहिए, उनको बैंक्स हैं, बट जो फार्मर्स हैं वो अवेयर नहीं है, तो वो बैंक से लोन नहीं लेते हैं, वो ट्रेडर से लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ अभी हो भी रहा है हमारे कंट्री में कि जो क्रॉप है उनका इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है कि सपोज हमने क्रॉप इंश्योरेंस करा ली, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम जो है अगर हमारी क्रॉप फेल कर जाती है बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल रीजन, ठीक है, किसी भी नेचुरल या अननेचुरल किसी भी रीजन से अगर हमारी क्रॉप फेल कर रही है, तो हमको गवर्नमेंट जो है वो उसका पैसा देगी। दिस इज इंश्योरेंस, इसी को हम इंश्योरेंस कहते हैं कि क्रॉप फेल करने की कंडीशन में ये नहीं होगा कि जो फार्मर है अब वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, वो क्या करे कहाँ जाए, दे आर नॉट नोइंग, ऐसा नहीं है। अगर वो उन्होंने क्रॉप की वो करवा चुकी है, इंश्योरेंस करा चुकी है, तो उनको क्या करना होगा, उनको वो पैसे मिल जाएंगे, जो भी क्रॉप का उनको प्रोड्यूस होता वो पैसे उन्हें मिल जाएंगे। तो ये दो जो तरीके हैं, दे आर द बेस्ट वे टू हेल्प द फार्मर्स इन व्हेन दे आर in such condition as we have discussed. So this is all for today. We will discuss other things in the next class.